Hello students, welcome you all in English classes of RDS Group of School. Class, this video is for class 7th. But before starting this video, I would like to tell you that class yesterday I have sent by mistake 6 class video of chapter 10. That was wrong. If anybody has done that work of lesson 10 from class 6 video, please paste those pages and then write there your chapter, that is टेंस लेसन नंबर 10 क्लास। कल मैंने आप लोगों को 6 क्लास का बाय मिस्टेक वीडियो भेज दिया था, जो था आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का। वो आपका सिलेबस नहीं था लेसन 10 का। तो आपको क्या करना है, अगर बाय मिस्टेक किसी बच्चे ने कर लिया है तो वो उन पेजेस को पेस्ट कर देगा और उसके बाद आपको ये लेसन 10 जो टेंस है वो करना है प्लीज़। Okay, let's start the chapter. What is, first of all, you will mention your date and page number, and then you will write your thought. We should remember our past, live in present, and think about future. Full stop, inverted comma, close. Then your lesson number, that is 10. Then your tense title name, that is tense. So first of all, what we have to do, we have to show the types of tense through a chart. We have to show the types of tense through a chart. So there are 3 types of tense. If someone asks you how many types are there, you will simply reply that there are 3 types of tense. First is past, present and future. And class, what you will do, you will draw some pictures to show the difference among the time. So you picture, when you are drawing or pasting your picture, you have to be very careful that your picture should show the difference among the picture. There should be a big difference between among the pictures from present, past or future. As you can see in the video, you can also draw this thing. You can also paste the pictures of a kid, a boy or a man to show the difference. You have to show the difference among the pictures. First of all, you will draw this chart as you can see in the video, and please take more space to draw a chart. Don't try to adjust a chart. किसी भी चार्ट को adjust करने की कोशिश ना करें, proper space पे बनाएं तो ही वो आपको अच्छा लगेगा. So first of all, you will write the definition of the tense. Tense are the forms of a verb that are used to show the time of the action expressed by the verb. Tenses tell us whether an action takes place in the past, present or future. Thus we have the present tense, past tense and the future tense. If someone asks you what are tense, you will simply reply that the tenses are the forms of verb which tells us the time of a sentence, when an action was happened. So tenses are the forms of verb which tells about the time of an action. Okay, this is the definition of the word. Tenses are the forms of verb which tells us the time of an action. After that, we will draw a chart of the kind of each tense. So as you all know, there are 4 parts of each tense. There are 4 parts of each tense. You will also draw this, and simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Class, you have to make it very clean. Keep in mind, as you can see in the video, your work should be very neat and clean. Each and every type should be visible clearly. Your work should not look hodgepodge. So please pay attention. After that, present, there are also 4 parts: simple present, present continuous, present perfect continuous. Then future, simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Then you will draw the chart of forms of verb. Mainly there are 4 forms of verb. Mainly there are 4 forms of verb. First form, second form, third form and fourth form. And class, your first form is also called base form, second form is called past form, third form is called past participle and fourth form is called present participle. If someone asks you from this topic, this type of questions are also formed, that which form is called past participle, which form is called present participle, which form is called base form, which form is called past form. So here you have to keep in mind, mainly there are 4 types of verb forms of verb, and there is only a 5th form, but mainly there are 4 forms. So first of all, we will read the rule of simple present tense. So the rule is subject plus verb की first form plus SEIS plus object.
सो ही प्लेज क्रिकेट। सो क्लास आपके क्या होता है इसमें रूल, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या ई एस है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट की फॉर्म में एस या ई एस ऐड करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। तो ही, जैसा कि ही है आपका, ही आपका सिंगुलर है। जैसे कि आपका सिंगुलर है तो हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, हमने क्या यूज़ किया है आपका प्लेज। अब ही की जगह यहाँ पे दे लिखा होता तो दे की जगह क्या आ जाता, प्ले आ जाता आपका। तो आपको ये रखना है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और अगर सिंगुलर आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम लिख देते हैं। और क्लास यू हैव टू, आपको ये भी अपने माइंड में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ऐसे दो टेंस होते हैं जिनमें सिंपल से निगेटिव का रूल काफ़ी बदल जाता है। तो सिंपल का रूल तो आपका ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसका निगेटिव बनेगा तो क्या होता है, इसमें डज नॉट और डू नॉट यूज़ होता है। सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसमें हम एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं। ओके, तो आपको सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका सिंपल से निगेटिव का रूल चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें डज नॉट और डू नॉट, नॉट को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, इसलिए हम डू और डज का यूज़ करते हैं। अब इफ़ समवन आस्क यू व्हेन यू विल यूज़ सिंपल प्रेजेंट, अगर आपसे कोई पूछेगा इस टेंस का यूज़ हम करते हैं, तो सिंपली यू विल रिप्लाई दैट व्हेन यू वांट टू टेल अबाउट योर डेली रूटीन, योर डेली वर्क विच यू डू डेली, or your habit, then you will use this tense. When you want to tell about your routine, your daily work, then you will use simple present tense. Then present continuous, what is the rule, subject plus is mr plus verb first form plus object plus subject plus सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। क्लास वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जैसा कि रीड लिखा होता है तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसी में हम आई एन जी ऐड कर देते हैं तो वो रीडिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी भी लिख देते हैं, और इसे हम फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल। So now there is a question class, when you will use present continuous tense. So you will simply, when you are doing something in present and you want to tell about that action, that you are doing this thing, you are doing that thing, then you will use present continuous tense. This time what are you doing? So this time you will simply reply that you are listening my video. I am teaching and you are listening. So whatever work you are doing in present and you want to tell about that thing, simply you use present continuous tense. Then present perfect class, what is the rule of present perfect, subject plus has is used with singular subject and have is used with plural subject. Then verb की third form, that is past participle, then object. I have written about present continuous tense. So when you will use present perfect tense class, when you have just completed any work and you want to tell or you want to inform about that tense, देन यू विल यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। जब आपने कोई काम बस जस्ट फिनिश किया और आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, बताना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यही टेंस यूज़ करेंगे। ओके, सपोज जैसे आपने मेरे सब्जेक्ट का वर्क कर लिया, तो आई हैव डन माई वर्क। जैसे आप कोई वर्क कर लेते आई हैव कम्प्लीटेड, आई हैव डन। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ ही यही है कि जब आपने कोई काम बस फिनिश कर लिया और आपको बताना है कि आपने वो कर लिया है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड एंड हैज़ एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। Class, there is option between since and for. When your time is particular, confirmed, like morning, like 2 o'clock, like evening, then you will use since. And if your time is not particular, like your time is 2 hours, you cannot tell that what 2 hours I am talking about, 3 hours, 3 months, 3 years. So when your time is confirmed, like morning, evening, afternoon, like 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, then you will use since. Or then the name of year is given like 2001, 2002, then you will use since, else you will use
for, then you will write your time. Let's see an example. I have been writing about tense for 25 minutes. So used, and this tense is used to denote an action started in past and still continuing in present. सो क्लास इसका हम यूज़ कब करते हैं, जब आपका कोई काम आप कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया था बहुत पहले, उसको अभी तक आपने कंटिन्यू किया हुआ है। तो आप कोई काम कर रहे हो, पहले से आप कर रहे हो और आपको उसका टाइम बताना है कि आप कितने टाइम से कर रहे हो, तो आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका यूज़ कहीं ना कहीं सेम है। दोनों कोई वर्क चल रहा है उसके बारे में बताते हैं, कोई वर्क हो रहा है, रनिंग में है, उसके बारे में बताते हैं। और जब आपको सिर्फ वर्क के बारे में बताना है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताएंगे। और जब आपको ये बताना है कि आप कितनी देर से ये वर्क कर, जैसे आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप मेरा वीडियो कितनी देर से सुन रहे हैं, तो आई एम लिसनिंग, यू विल से आई एम लिसनिंग दिस वीडियो फॉर 20 मिनट्स। ओके, तो आपको जब ये बताना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो प्रेजेंट में और कितने टाइम से कर रहे हो, तो आप क्या यूज़ करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देन सिंपल पास्ट, द रूल इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एंड निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लग जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लास ये बात आपको बहुत ध्यान देनी है। बच्चे मोस्टली यहीं पे गलती करते हैं कि वो डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगा देते हैं। और सेकेंड फॉर्म आपकी सिंपल टेंस में आती है जब आपकी सिंपल सेंटेंस होता है। जब निगेटिव बनेगा यानी नॉट वाला सेंटेंस बनेगा या इंट्रोगेटिव बनेगा, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो चाहे वो सिंपल पास्ट हो, तब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, वो सेकेंड फॉर्म ही लगा देते हैं। तो आप डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अब इसका यूज़ हम कब करते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं जब आपको पास्ट में कोई वर्क आप अक्सर करते थे। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लेंगे। ही कम्प्लीटेड हिज वर्क येस्टरडे। अब देखिए कि आपका सिंपल सेंटेंस है इसलिए सेकेंड फॉर्म आई है कम्प्लीटेड की। अब यहाँ डिड नॉट ऑलरेडी, क्योंकि आपका जो डिड है वो डू की सेकेंड फॉर्म है, वो डू की सेकेंड फॉर्म है, तो ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म आ चुकी है। तो अब देखिए सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म आई है और जब नेगेटिव बनाया है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई है। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस है कि सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म थी, जब डिड नॉट लग गया तो फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये होता है, आपको ध्यान रखना है सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में। अब इस टेंस का यूज़ क्या करना है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टेंस? व्हेन यू वांट टू टेल एन एक्शन which was happened in past और which was your past habits। कोई ऐसा वक्त जो आप बहुत पास्ट में आपके साथ हुआ था, अब ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली, अब आप नहीं है वो, या आपकी कोई पास्ट की हैबिट थी आप जो करते थे, या कोई पास्ट का कोई वर्क जो कंप्लीट हो गया है। जैसे आप 3-4 दिन पहले आप मुंबई गए थे तो आई वेंट मुंबई। इस तरह से सेंटेंस जो आपको लगता है काम कंप्लीट हो गया, काफ़ी टाइम हो गया उसके लिए, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट। तुरंत कंप्लीट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है तो हम सिंपल पास्ट के साथ जाएंगे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? व्हाट इज़ द रूल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या हम जिसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। सो वॉज आपका जाता है सिंगुलर के साथ एंड वर्ब जाता है आपका प्लूरल के साथ। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। And what is the use of this sentence? Used to denote actions that were taking place for some time in the past। आपको ये बताना है कि पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि कल सुबह तुम क्या कर रहे थे तो आई वॉज प्लेइंग, कल शाम को तुम क्या कर रहे थे आई वॉज वर्किंग। तो आपको पास्ट में कोई एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में आप जानना चाहते हो सामने वाले से, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। द पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम कब करेंगे? व्हाट इज़ द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आफ्टर या बिफोर, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको पास्ट के किसी दो वर्क की बात करनी। पास्ट में कोई दो बातें हुई थी एक के बाद एक, और आपको ये बताना है कि पहले ये हुआ था बाद में ये हुआ था। तो आपके जब पास्ट के दो सेंटेंस की बात एक साथ करनी है जो आसपास हुए थे, तो उसके लिए हम विच टेंस वी यूज़ पास्ट परफेक्ट। जो पहले वर्क कंप्लीट होता है उसमें हम रूल अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ, उसके बाद आफ्टर या बिफोर का यूज़ कर लेते हैं। उसके अगर आप सेकेंड वर्ब को पहले ला रहे हैं तो आप आफ्टर यूज़ करेंगे, और अगर फर्स्ट वर्ब को पहले ला रहे हैं तो बिफोर यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो जो वर्क पहले हुआ है उसको इसमें बनाएंगे और जो सेकंड हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में। ये रूल किसका होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सिंपल पास्ट का होता है। तो पास्ट के दो वर्क की बात करनी है तो जो पहले हुआ है उसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के रूल में बनाएंगे, यानी कि ये रूल लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म। उसके बाद उसके बाद दूसरा वर्क हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ये रूल आपको याद रखना है। जो पास्ट के दो एक्शन की आपको बात करनी है, जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट में एक बना देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर हैड टॉट द लेसन बिफोर द प्रिंसिपल केम, यानी प्रिंसिपल जब क्लास में आई वो बाद में आई, पहले क्या हुआ था? पहले टीचर अपना लेसन पढ़ा चुकी थी, इसलिए देखिए बिफोर यूज़ किया था। और अगर आप पहले ये लिखें द प्रिंसिपल केम इन द क्लास आफ्टर द टीचर हैड टॉट द, अगर ऐसा होता है तो जो वर्क हुआ है तो क्या होता है आपका? द टीचर हैड टॉट द लेसन आफ्टर द प्रिंसिपल केम। अगर आप ये सेंटेंस पहले लाएंगे द प्रिंसिपल केम इन द क्लास आफ्टर द टीचर हैड टॉट द लेसन, तो आफ्टर लगा लेंगे। अगर आप सिंपल पास्ट वाला वर्क जो बाद में हुआ उसको पहले लिख रहे हैं तो आफ्टर लिखिए, अगर जो पहले वर्क हुआ उसी को पहले लिख रहे हैं तो बिफोर यूज़ कीजिए। अब देखिए यहाँ दो काम आपके पास्ट में हुए थे कि प्रिंसिपल आई थी और क्या हुआ था? टीचर ने पढ़ाया था, लेकिन प्रिंसिपल के आने से पहले टीचर पढ़ा चुकी थी, तो पहला वाला सेंटेंस हैड के साथ बन गया है आपका है, और दूसरा वाला किस में बन गया है आपका? सिंपल पास्ट में, क्योंकि केम आया है यहाँ पे। ओके, यूज टू इंडिकेट विच ऑफ द टू एक्शन इन द बाकी पास्ट के टू एक्शन में पहले कौन सा हुआ है उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हम कब करते हैं? व्हाट इज़ द रूल? द रूल इज सब्जेक्ट प्लस, देखिए आपके मेनली रूल सब में होते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वही पास्ट परफेक्ट में होगी, वही फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब होगी। सब आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं। तो व्हाट इज़ द रूल? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स फोर्थ फॉर्म भी हम इसे जानते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, पर्टिकुलर है या आपका नॉट कन्फर्म है, टाइम लिख देंगे। एग्जाम्पल, टीचर हैड बीन टीचिंग द टॉपिक सिंस फर्स्ट पीरियड। अब इस टेंस का यूज़ कब होता है? यूज टू रिफर एन एक्शन दैट टुक प्लेस कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द पास्ट। पास्ट में एक वर्क कितनी देर तक हुआ था? यू हैव टू टेल दैट इन द पास्ट द वर्क हैपेंड फॉर हाउ मच टाइम, कि पास्ट में एक वर्क हुआ था और कितनी देर के लिए हुआ था। तो जैसे कि कल आप लोग ने गेम खेला था, कितनी देर के लिए खेला था? तो वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर। ठीक है, पास्ट में आपको कोई वर्क हुआ, कितनी टाइम भी बताना है, कितनी देर तक हुआ था वो वाला वर्क, तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। देन सिंपल फ्यूचर का रूल क्या? सिंपल फ्यूचर शी प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका जो शैल है वो सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है। जो शैल है वो आई और वी के साथ यूज़ होता है। रिमेनिंग सबके साथ आप विल ही यूज़ करेंगे। सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ आपको शैल यूज़ करना है। रिमेनिंग आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप विल ही यूज़ करेंगे। आई शैल कम टुमारो, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। उसके बाद यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। आपको ऐसा लगता है फ्यूचर में ये चीज़ होगी, आपको लगता है फ्यूचर में ये चीज़ आप करेंगे, फ्यूचर की कोई बात बतानी है कि, तो हम क्या कौन सा यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स फोर्थ फॉर्म भी हम लिख सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। द एग्जाम्पल इज यूज टू रिफर एन अनफिनिश्ड एक्शन और इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। आपका कोई वर्क है जो आपको बताना है कि कोई वर्क है आपका प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और वो फ्यूचर में जाके ख़त्म होगा, तो हम फ्यूचर में आपको बताना है, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आपको कोई वर्क है जो आपको लगेगा कि आप प्रेजेंट टाइम में इस टाइम क्या कर रहे होंगे, आपको फ्यूचर टाइम में अगर आपसे पूछा जाए कि आप कल 2 बजे तुम क्या कर रहे होगे, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आई विल बी प्लेइंग। तो अगर जैसे आपको एक ऐसी बात बतानी है कि आप फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या वर्क कर रहे हो, अगर पास्ट में पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहे हो तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे?
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, शी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एन एग्जाम्पल इज आई शैल हैव completed my work, and this tense is used to refer an action that will over in the future। आपको लगता है कि कोई काम फ्यूचर में इस समय तक कोई पर्टिकुलर टाइम तक फिनिश हो जाएगा। आपको लगता है कि एक कोई भी वर्क फ्यूचर में इस पर्टिकुलर टाइम तक आप कर लोगे। जैसे आप कल अगर आप आज की बात कर रहे हो तो आप पूछेंगे कि कल तक आपका वर्क ये हो जाएगा, आपको लगता है कि आप कल ये वर्क फिनिश कर दोगे, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय इवनिंग। आपको बता, जैसे आप कोई वर्क अभी तक कर रहे हो, आपको लगता है कि इसमें 2 दिन लगेंगे, 3 दिन में पूरा हो जाएगा, आपको एंडिंग टाइम बतानी है फ्यूचर में, तो आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी सेम यूज़ है जैसे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था, प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं तो कितने टाइम से आप वो काम कर रहे हैं, पास्ट में आपने कोई काम किया तो वो वर्क कितने टाइम तक किया, फ्यूचर में भी आप कोई काम करेंगे, जैसे आप आज बोले कि आप कल इतने घंटे तक खेलेंगे, तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि आप फ्यूचर में ये वर्क कितनी देर तक करेंगे, तो आप क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर। जैसे कि आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours टुमारो। आपको लगता है कि आप कल 2 घंटे तक पढ़ रहे होंगे, आप 2 घंटे तक कल पढ़ेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? आप यूज़ करेंगे, टाइम बताएंगे कि आप कल 2 घंटे तक आप पढ़ाई करेंगे, तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल। आपका जो टेंस का यूज़ है वो मोस्टली एक ही मतलब सेम है उसी, अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तो वही, अगर पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट में हो गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, और आपका वर्ब की फॉर्म भी मोस्टली सब में सेम ही होती है। तो इस एक्शन का यूज़ अब हम क्या करेंगे, जब आपको पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में आप कोई वर्क कितने टाइम तक करेंगे उसके बारे में बताना है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमें क्या करना है यहाँ पे, इस एक्सरसाइज में क्या है क्लास, देयर इज़ अ टेंस इज गिवन। यहाँ पे एक टेंस दिया गया हुआ है और टेंस में सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज़ नहीं हुई है, टेंस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज़ नहीं हुई है। जैसे आपको कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है लेकिन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दिया है, थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पे आपको देखना है, टेंस याद रखना है कि किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब लगती है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो वो हमें करेक्शन करना है। तो पहला आपका है, ही वॉज अ बॉय व्हेन ही जम्प्स फ्रॉम द रूफ। अब देखिए ये व्हेन ही वॉज अ बॉय, जब वो लड़का था, यानी पास्ट की बात हो रही है और उन्होंने यहाँ पे जम्प्स लगा दिया है, और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। और आपने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि सीक्वेंस ऑफ टेंस में, कि अगर पास्ट टेंस 2 टेंस लिखे हुए हैं तो अगर एक में पास्ट टेंस है तो दूसरे में भी पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस की ये कंडीशन होती है कि अगर 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं तो दोनों पास्ट में ही होने चाहिए। तो आपका जम्प्स जो है वो इनकरेक्ट है, जम्प्ड करेक्ट है, और इनकरेक्ट क्या है? जम्प्स। जम्प्स आपका गलत लिखा है, इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए? जम्प्ड लिखा हो जाना ही चाहिए। ओके। दूसरा, आई हैज़ टॉक्ड अबाउट द मैटर टू द टीचर, शी विल सॉल्व माई प्रॉब्लम। और इसमें देखिए आपको पता है कि आई के साथ हैज़ यूज़ नहीं होता है, क्या यूज़ होता है? आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, तो ये गलती मिली। दूसरा, शी विल सॉल्व। अब देखिए ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है, अगर आप सिंपल फ्यूचर का रूल देखेंगे तो विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और सॉल्व आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सॉल्व आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इस सेंटेंस में 2 गलतियां हैं, तो इनकरेक्ट क्या है आपका? इनकरेक्ट 2 हैं, हैज़ गलत है और सॉल्व गलत है। ओके, इनकी जगह क्या होना चाहिए? हैज़ की जगह हैव होना चाहिए और सॉल्व की जगह सॉल्व होना चाहिए। देन शी टोल्ड द ट्रूथ एंड गो टू द होम। अब देखिए इसमें क्या हो गया है कि पहला सेंटेंस आपका पास्ट में दिया, उसने सच बताया, और यहाँ पे देखिए गो लगा के प्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका गलत हो गया। तो गो आपका गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेंट होना चाहिए। आफ्टर वी हैड क्लीन्ड द रूम स्वीपर कम टू होम। अब देखिए आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है आपका? पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि
पहले जो वर्क हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरे में सिंपल पास्ट आ जाता है, और कम तो फर्स्ट फॉर्म होती है और सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, केम। तो कम आपका रॉन्ग है, इसकी जगह क्या होगा आपका, केम होगा। फिर दे विल हैव कंप्लीट देयर वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट का रूल देखेंगे तो परफेक्ट में आपकी थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस जो होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी है। तो कंप्लीट आपका इनकरेक्ट है, इसकी जगह क्या सही होगा, कंप्लीटेड करेक्ट होगा। देन शी डू नॉट कम्स डेली। अब मैंने बताया था सिंगुलर के साथ डू यूज़ नहीं होता है, सिंगुलर जितने भी हैं आपके एक लोग होते हैं उसके साथ डज यूज़ होता है। तो आपका डू रॉन्ग है, इसकी जगह क्या सही होगा, डज सही होगा। गर्ल्स आर संग अ सॉन्ग। अब देखिए आर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है, आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, और इन्होंने थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे संग जो है वो आपका रॉन्ग है, इसकी जगह आपका क्या होगा, सिंगिंग होगा। ओके। फिर आई डिड नॉट ब्रोक। अब देखिए मैंने जैसे बताया था, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और यहाँ पे क्या दी है, सेकेंड फॉर्म दे दी है। तो ब्रोक गलत है, इसकी जगह ब्रीक होगा। उसके बाद देखिए द बॉयज इज वेरी नॉइजी। अब देखिए बॉयज आपका प्यूलर है, बॉयज आपका बहुत सारा है, और यहाँ पे वर्ब क्या लगा दी है, सिंगुलर लगाती है। तो इस गलत है, इसकी जगह आर होगा। शी हैव टू कम यस्टरडे। अब आपको पता है शी के साथ हैज़ लगता है, तो हैव गलत है, हैज़ सही होगा। वाई डू राम प्ले। अब मैंने फिर बताया राम एक पर्सन है, एक इंसान का नाम है, तो डू नहीं होगा, क्या होगा आपका, डज होगा, तो गलत है। फिर दे कैन सॉल्व द सम। अब देखिए जैसा कि आपने मॉडल्स के पता होगा कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जितने भी मॉडल्स होती हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती हैं। सो सॉल्व इज रॉन्ग, देयर विल बी सॉल्व। शी हैज़ टू डांस यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे की बात हुई है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, और हैज़ और हैव तो आपका प्रेजेंट में यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज़ गलत है, हैड सही होगा। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, आप यू हैव टू अरेंज द सेंटेंसेज। यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंस दिया है, हमें अरेंज करना है। तो पहला होगा वी शुड यूज सिंपल लैंग्वेज टू क्लियर द मीनिंग ऑफ आवर सेंटेंस। लेट्स गो टू प्ले इन द ग्राउंड, दे वर ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड द वॉल। इट इज़ वॉल, ये आपका वॉल लिखा हुआ है, वॉल। I try to get rid of the problem. Your behavior is very irritating in the class. Natural beauty is the best beauty. Each part of the world has its own importance. Switzerland is famous for its beauty. I read newspaper because I like to get information. The spelling of names in this map have been taken from various sources. So your chapter is completed, class. So please do your work very nicely, class. And first of all, don't try to adjust your chart. You have to give proper space to your chart to make your work good. And your picture should be pasted very nicely, that they should show the difference among the past, present and future. So please make sure that your picture should be good, your work should be good. And whenever you will write your work, please pay full attention that you should avoid spelling errors. Thank you and have a nice